تراویح کا لفظ ہے یہ 8 رکعتوں پر صادق بولو نہیں آتا. بیہقی کی حدیث ہے اور بھی روایتیں اس بارے میں کہ اسلاف جب تراویح کی نماز پڑھا کرتے تھے, اسلاف سے مراد صحابہ تابعین, تو 4 رکعتوں کے بعد آرام کیا کرتے تھے. تو اس لیے 4 رکعت کو ترویحہ کہا گیا. اب ترویحہ کا جو لفظ ہے نا, 4 رکعتوں کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ ریسٹ. اٹ از کالڈ ترویحہ. سب کو پتہ ہے 4 رکعتوں کو ترویحہ کہتے ہیں. 2 ترویحوں کو عربی میں کہیں گے ترویحتان. کیا کہیں گے؟ جیسے رجل کا معنی ایک آدمی, رجلان 2 آدمی. عربی میں 2 کے لیے الگ لفظ استعمال ہوتا ہے, 2 سے زیادہ کے لیے الگ. تو اگر یہ 8 رکعتیں ہوتی تو ان کو محدثین تراویح نہ کہتے بلکہ ترویحتان کہتے یا ترویحتین کہتے. اور تراویح کا لفظ ہے جمع. عربی میں جمع کم سے کم افراد کتنے ہوتے ہیں اس کے 3, تو کم سے کم 12 رکعتیں ہونی چاہیے. لیکن تراویح بھی جمع کثرت ہے, جمع قلت کثرت. جمع اقصا کہتے ہیں جو بہت زیادہ جمع ہو. تو پتہ ہے 4 رکعتیں کافی زیادہ ہیں تو ان کو تراویح کہا جائے گا. 4 رکعتیں تھوڑی سی بھی ہو تو ان کو تراویح. 4 رکعتیں اگر 3 دفعہ آئیں گی تو اس کو بھی علی وجہ الکمال ہم پورے طور پر تراویح کا لفظ اس پہ صادق نہیں آئے گا. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ سمجھ میں سب آ رہی ہے, لیکن گھننے بن جاتے ہیں, گھماتے ہیں. اب دیکھیں نا یوٹیوب پہ اس کا جو بیان آئے گا نا اس میں گھمایا ہوا ہوگا. پہلے سے مفتی صاحب نے طے کر دیا کہ یوٹیوب پہ جو بیان آئے گا گھمایا ہوا ہوگا. یوٹیوب پہ جو بیان آئے گا گھمایا ہوا ہوگا. بھائی سیدھی سی بات ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لفظ 8 رکعت پہ صادق نہیں آتا, تو مارو لفظ کو, مارو گولی. کیا اسے چمٹی ہوئی ہو؟ یہ بولو لفظ غلط ہے نا. اگر 8 رکعت تراویح پہ صادق نہیں آتا ہے تو جو اصل سنت ہے اس کو ہٹا دو گے یا ٹائٹل ہٹا دو گے؟ بھائی اگر نہیں صادق آتا ہے تو ٹائٹل لے کے ڈھو, آپ ہمیں اس سے کیا لینا دینا. کیونکہ یہ ٹائٹل, تراویح کا ٹائٹل اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نہیں ہے. قرآن میں کی تراویح کا لفظ ہے نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں تراویح کا لفظ ہے نہیں ہے. کسی بھی صحابی کی سے منقول کسی صحیح حدیث میں تراویح کا لفظ ہے نہیں. آپ نے بیہقی کی ایک روایت کی طرف اشارہ کیا, آپ نے پڑھا نہیں, پتہ نہیں کون سی روایت آپ کی نظر میں ہے. ایک روایت ہے میری نظر میں جس میں تراویح سے ملتا جو ہے ایک لفظ ہے, لیکن وہ سند صحیح نہیں ہے. امام بیہقی رحمہ اللہ نے بھی اس پہ شک کا اظہار کیا, کہا کہ اگر یہ حدیث صحیح ہو تو اس کا مطلب یہی سے تراویح کا لفظ نکلا ہے. لیکن امام بیہقی رحمہ اللہ بھی اس لفظ کو صحیح نہیں مانتے. اور اس میں ہے کیا, اس میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہی روایت ہے جو 11 رکعت کی بات کرتی ہیں. تو 11 رکعات کی بات اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی ہے, اور وہیں پہ تراویح سے ملتا جو لفظ ہے. تو انہوں نے تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ, اگر اس روایت کو صحیح مانے تو ہماری نظر میں تو روایت صحیح نہیں ہے. اگر اس روایت کو صحیح مانے تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اسی پہ تراویح کا لفظ جو ہے بٹھا دیا کہ وہ تراویح ہے. تو بہرحال تراویح کا لفظ نہ قرآن مجید سے ثابت ہے, نہ کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے, نہ صحابہ کرام میں سے کسی صحابی سے ثابت ہے. اس لیے جب یہ لفظ ہی بعد میں بنا ہوا ہے تو اگر یہ لفظ کسی سنت پر صادق نہیں آتا ہے تو اس سے کیا لینا دینا. بھائی اس لفظ کو وہاں سے ہٹاؤ. اگر اس لفظ کے مطابق کوئی چیز نہیں مل رہی ہے تو جو چیز ہے اصل سنت سے ثابت ہے وہ اصل ہوگی, نہ کہ وہ لفظ. وہ لفظ اپنی جگہ سے ہٹے گا لیکن اصل چیز یعنی قرآن و حدیث اپنی جگہ سے نہیں لے گا. اب آپ نے ایک اور لفظ بنا کے رکھا نا, شب برات. شب برات یہ لفظ ہے, اس لفظ کا جو مدلول ہے, جو معنی مطلب ہے, اس کے تعلق سے کوئی دلیل موجود نہیں ہے. تو اس لفظ کو اپنے پیچھے ہٹنا ہوگا, نہ کہ ہم کوئی قرآن حدیث کی کوئی چیز بنا کے لا کے ڈال دیں گے کہ اس لفظ کے مطابق کوئی چیز ہو. تو شب برات اس لفظ کو آپ کو وڈرا کرنا ہوگا اگر اس کے مطابق کوئی چیز نہیں مل رہی ہے تو, اور حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے لفظ شب برات آپ لاکھ چلائیں, فلاں نے کہا, دھماکے نے کہا, لیکن جب اس کی دلیل موجود ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو ایسے اگر تراویح کا مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے اتنی ساری رکعات ہوں, یعنی 8 رکعات تراویح پہ یہ لفظ صادق نہیں آتا, تو اپنے پاس رکھیے نا اس لفظ کو, ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں لفظ تراویح کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے خیر القرون میں بھی کوئی نام و نشان نہیں ملتا کہ کسی نے تراویح کا لفظ استعمال کیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری رکعات پہ تراویح کا لفظ استعمال ہوگا. تو بھائی جن لوگوں نے 20 نہیں 20 سے بھی زیادہ پڑھی ہے, 20 نہیں 20 سے بھی زیادہ, 40 پڑھی ہے لوگوں نے, 36 پڑھی ہے لوگوں نے, بہت بڑی تعداد میں رکعتیں پڑھی ہے, تو ان لوگوں نے ان رکعات میں تراویح کا لفظ استعمال کیا. تو آپ نے 20 میں کہاں سے لا کے فٹ کر دیا؟ آپ نے کہا کہ یہ جمع ہے, بہت زیادہ پہ تراویح کا لفظ صادق ہوگا. اگر یہی بات ہے تو 20 کو بھی تراویح مت بولیے, آپ بولے نا 40 پڑھیں گے تب تراویح پڑھیں گے. تیسری بات یہ ہے کہ اگر ترویح جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 4 رکعت پڑھ کے آرام کرتے تھے, اگر کوئی آرام نہ کرے 4 رکعت پڑھنے کے بعد اگر کوئی آرام نہ کرے تو کیا کہیں گے, وہ تراویح نہیں ہے؟ آپ مجھے بتائیں مفتی صاحب, آپ فتویٰ دیں کہ اگر کوئی بندہ, آپ کہتے ہیں کہ تراویح کا لفظ صادق نہیں آئے گا, ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں کیونکہ تراویح میں 8 رکعت 11 رکعت میں بار بار آدمی آرام نہیں کرا. ہم کہتے ہیں کہ 20 رکعت بھی اگر کوئی پڑھ رہا ہے
और वो हर 4 रकत पे आराम नहीं कर रहा है, मुस्तकिल यानी कंटिन्यू पढ़ते जा रहा है, तो आप ये बताइए कि क्या उसे तरावी बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? उस नमाज का क्या नाम रखेंगे? क्या उसको और नमाज का नाम रख देंगे? देखिए, इमाम अहमद बिन हंबल रहमुल्लाह से ये पूछा गया, मसाइल अबी दाऊद, इमाम अबू दाऊद रहमुल्लाह जो उनके शागिर्द हैं, उनकी किताब है मसाइल अबी दाऊद, उसमें उन्होंने पूछा, वो कहते हैं कि समी तो अहमद, मैंने इमाम अहमद बिन हंबल रहमुल्लाह से सुना कि सुइला अन कौमिन सल्लू फी रमजाना खम्स तरावी, मैंने सुना कि इमाम अहमद बिन हंबल रहमुल्लाह से पूछा गया कि कुछ लोग जो 5 तरावीह पढ़ते हैं, तो 5 बार आराम करते हैं, लेकिन लम यतरावहु बैनहुम, लेकिन वो यानी पढ़ते हैं, तरावी का नाम दिया उसको, लेकिन बीच में वो आराम नहीं करते हैं। अल्लाह बस का कोई हर्ज की बात नहीं। यानी आप बताइए कि इतनी सारी रकात पढ़ते हैं, लेकिन बीच में अगर वो आराम ना करें तो कहते हैं कोई मसला नहीं। तो ये जो बीच में आराम करने वाली बात है ना, यानी 4 रकत पे आराम करने, क्या ये कुरान और हदीस में इसको लाजिम किया गया कि आराम करना? भाई इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह फतवा दे रहे हैं कि अगर कोई आराम नहीं भी करता है, उससे पूछा गया कि कोई इतनी रकात पढ़ता है और बीच में आराम नहीं करता तो कोई मसला? कहते कोई मसला नहीं। तो आप देखें कि वो शख्स जो 20 रकत पढ़ रहा है, हम 8 की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं जो 20 रकत पढ़ रहा है, अगर वो बीच में आराम ना करे तो क्या उसकी नमाज तरावी नहीं है? क्या उसको आप तरावी नहीं कहेंगे? और आगे बढ़े, एक और चीज, ये जो हमारी किताब है मसनून रकात तरावी, इसमें हमने सफा नंबर 383 इस पे मैंने इस शुबह का जवाब दे रखा है। ये जो आपने उठाया ना लफ्ज तरावी, इसमें हमने ये तफसील दे रखी है कि अगर मान भी लें कि नहीं जो है तरावी हराल में बोलना ही बोलना है, तो जो 11 रकात पढ़ते हैं उन पर भी तरावी का लफ्ज सादिक हो सकता है, अगर वो 4 रकात के बाद थोड़ा रुकते हैं। कि आपने कहा कि जमा में कम से कम 3 होना चाहिए, भाई ये किसने बता दिया आपको जमा में कम से कम 3 होना चाहिए? अगर 2 है, कोई चीज 2 है, तो उस पर भी जमा का लफ्ज आता है। इसमें बहुत सारी तफसील आपको मिलेगी मेरी किताब में, लेकिन मैं सिर्फ एक मसले की तरफ इशारा करूंगा। सूरह निसा की आयत नंबर 11 है, अल्लाह ताला फरमाता है फ़इल्लम यकुन लहु वलदुन व वरिसहु अबवाहु फलिउम्मिहि तुलुस फ़इन काना लहु इख्वतुन फलिउम्मिहि सुदुस। अल्लाह ताला ये फरमाता है कि अगर किसी मरने वाले के भाई हो, इख्वा मरने वाले के भाई हो, तो माँ का हिस्सा कितना? 1/6। अब मुफ्ती साहब मुझे आप फतवा दीजिए कि एक आदमी मर गया, यहाँ पे जमा का लफ्ज है, इख्वा जमा का लफ्ज है, कि अगर मरने वाले के भाई होंगे तो मरने वाले की माँ का हिस्सा कितना? 1/6। अब अगर मरने वाले के 2 भाई हों, 2, तो उनकी वालिदा का कितना हिस्सा होगा? क्या 1/6 नहीं होगा? मेरे ख्याल से किसी भी चारों मजहब में किसी से भी जाके पूछेंगे, चारों मजहब में अहले हदीस से या हनफी से, किसी भी मुफ्ती से पूछेंगे तो वो कहेगा कि वालिदा का हिस्सा 1/6। तो कुरान में इख्वा का जमा है, तो 2 के होने की वजह से आप 1/6 हिस्सा कैसे देंगे? तो पता चला कि 2 पे भी जमा का इस्लाक होता है। तो अगर 4 तरावी पढ़ के कोई आराम करता है, फिर 4 पढ़ के कोई आराम करता है, तो इसको भी तरावी कहा जाएगा। तो ये जो लफ्ज से आपने साबित करने की कोशिश की है, इसकी कोई हैसियत नहीं। इस लफ्ज से अगर बहुत ज्यादा, यानी अगर आपकी बात मान भी ले, हालांकि मैंने कुरान से मिसाल दे दिया कि 2 पे भी जमा का इतलाक होता है, जमा का लफ्ज है इख्वा आया 2 पे, लेकिन चलो अगर हम आपकी बात मान भी लेते हैं कि 2 पे जमा नहीं कह सकते, तो ज्यादा बात क्या होगी? ये होगी कि बाद में जब लोगों ने यानी 11 रकत से ज्यादा पढ़ना शुरू किया, यानी बहुत ज्यादा पढ़ना शुरू किया 11 रकत से ज्यादा, तो उनको आराम करने की जरूरत महसूस हुई, तो उन लोगों ने उसका नाम तरावी रखा। तो ये वही नमाज है जिसकी असल 11 है, बाद में जब इसमें इजाफा किया गया तो उस इजाफे की वजह से ये टाइटल बना। तो जब उस बाद में उसका किसी वजह से उसका टाइटल बना, तो अब इस पूरी नमाज को, जो असल नाम क़याम रमजान था, उसका नाम लोगों ने तरावी रख दिया। तो ये लोगों का जो दिया हुआ नाम है, उस नाम से मसला साबित नहीं होता, उस नाम से शरई मसला साबित नहीं होता। तो बहरहाल खुलासा ये जो लफ्ज तरावी से आपने साबित करने की कोशिश की है और आप समझते किसी ने इसका जवाब नहीं दिया, आप अहले हदीस की कोई भी किताब उठा के देखें, मेरे ख्याल से हर किताब में इस चीज की वजाहत मौजूद है कि मुफ्ती साहब आप दलील दो, जो दावा करे दलील उसके जिम्मे है। मैंने कहा दलील उसके जिम्मे उस वक्त है जब सामने वाले दावे का इनकार करे। मैंने सत्तार भाई को मैंने कहा कि सत्तार भाई तुमने 1 लाख रुपए लिए हैं, सत्तार भाई कह रहे हैं नहीं, हाँ लिए हैं, तो मुझे क्या जरूरत है मैं गवाह पेश करूं के दलील दूं? वो मान रहा है, तो ये सब मानते हैं। मुफ्ती साहब ये कह रहे हैं ना कि सब मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं भाई? कह रहे हैं हमें दलील देने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत? हम ये नहीं मानते कि तरावी का लफ्ज कुरान में है, हम ये नहीं मानते कि तरावी का लफ्ज हदीस में है, हम ये नहीं मानते कि तरावी का लफ्ज किसी सहाबी ने जो है इस्तेमाल किया। इसलिए बाद के लोगों ने इस्तेमाल किया है तो वो जाने, उनका काम जाने। अगर हदीस में, कुरान में इस्तेमाल होता तरावी का लफ्ज, अगर हदीस में तरावी का लफ्ज आया होता, अगर सहाबे कराम
रजी अल्लाह ताला अन्हुम के जबान पे तरावी का लफ्ज आया होता तो सब आप ये इस्तेमाल करते, तब इस तरह की बातें करते। लेकिन इस तरह की बातें बाद के लोगों ने की, और बाद के लोगों ने पढ़ा है 20, हम क्या इनकार करते। बाद के लोगों ने 20 पढ़ा है, 40 पढ़ा है, उससे ज्यादा पढ़ा है। तो जिन लोगों ने 40 पढ़ा, 20 पढ़ा, उन लोगों ने तरावी का नाम दिया, तो उससे हमको क्या लेने देना। लेकिन अल्लाह के नबी ने ये नाम नहीं दिया है, सहाबा ने ये नाम दिया। तो आप ये ना, आप अगर ये समझते हैं कि सामने वाला तस्लीम कर रहा है, सामने वाला ये तस्लीम कर रहा है कि बाद के लोगों ने ये नाम दिया है। सामने वाला ये तस्लीम नहीं कर रहा है कि अल्लाह उसके रसूल ने ये नाम दिया है या सहाबा ने ये नाम दिया है। सहाबा के अक़वाल में, अहादीस में क़याम का लफ्ज आएगा, सलातुल लैल, क़यामुल लैल, इस तरह की बातें आएंगी। क़याम का लफ्ज आएगी, खामा का लफ्ज आएगा, सल्ला का लफ्ज आएगा, सलातुल लैल का लफ्ज आएगा, लेकिन तरावी का लफ्ज नहीं आएगा। तरावी का लफ्ज ये बाद के लोगों का दिया हुआ है, और बाद के लोगों ने ये लफ्ज दिया है, और बाद के लोगों ने जो है 20 रकत तरावी को भी जो तरावी कहा है, 40 रकत तरावी को भी तरावी कहा है। और अगर बीच में तरवीहा नहीं होता है, आप कह रहे ना तरवीहा सादिक नहीं आएगा, अरे भाई अभी इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह का कौल में पेश कर चुका कि अगर कोई बैठता ही नहीं है, अगर कोई आराम नहीं करता है, तो भी उसको जो है तरावी का नाम दिया जाता है। तो एक बार जब इसका बाद लोगों ने ये टाइटल दे दिया, तरावी का लफ्ज दे दिया, तो जिस वजह से दिया है वो वजह नहीं भी पाई जाती तो भी तरावी का नाम दिया जा रहा है। बीच में कोई बैठ के आराम नहीं कर रहा तो भी तरावी का नाम दिया जा रहा है। तो अगर 11 रकात पे अगर हम मान भी लें कि 11 रकात पे ये लफ्ज साबित नहीं आता है, क्योंकि इसी में आपने बढ़ा दिया रकतें, तो आपने उसको तरावी बोला, इसलिए इस नमाज को भी तरावी कहा जाएगा। जैसे 20 रकत को अगर कोई बीच में नहीं बैठता है, कंटिन्यू पढ़ता है, तो क्या उसका नाम तरावी नहीं कहेंगे। तो अगर उसने सिर्फ चूंकि उसका उस नमाज का नाम उलमा ने टाइटल दे दिया, तो अब उसकी रकतें घटाएं या बढ़ाएं, बीच में बैठें या ना बैठें, बाहर सूरत उसका नाम तरावी रहेगा। मैं इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह का कौल पेश कर चुका हूं कि अगर कोई तरवीहा नहीं करता है, आराम नहीं करता है, तो भी कोई मसला नहीं है, और फिर उसी सवाल जवाब में उसका नाम तरावी रखा गया। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह, उन्होंने तो सलातुत तरावी का चैप्टर कायम किया ना, और रकतें कितनी बताई हैं, 11। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने भी 11 रकत पे तरावी का लफ्ज का इतलाक किया है, 11 पे। तो अब बाद के लोग कहते रहे, आप जो है फतवा देते रहे कि तरावी का लफ्ज साबित नहीं आएगा, या आपकी नजर में साबित नहीं आएगा, इमाम बुखारी की नजर में तो हो गया ना साबित। इमाम बुखारी, और मैं शुरू में कह चुका हूं कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह को इब्न हजर रहमतुल्लाह ने क्या कहा, इमामुद दुनिया फी फिक़्हिल हदीस। तो जो पूरी दुनिया में फिक़्हुल हदीस के इमाम है, वो 11 रकात क़ियामुल लैल को तरावी का नाम दे रहे हैं। अब आज के 1400 साल के बाद का कोई मुफ्ती ये कहेंगे तरावी का लफ्ज सादिक नहीं आता है, वो बोलता रहे, हमको क्या लेने देना। वो बोलता रहे, 1400 साल के बाद का कोई मुफ्ती बोलता है कि 11 रकात पे तरावी का लफ्ज सादिक नहीं आता, उसके बोलने से क्या फर्क पड़ता है। अगर इमामुद दुनिया फी फिक़्हिल हदीस इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने तरावी का लफ्ज बोल दिया है 11 रकात पे, उसके बोलने से क्या फर्क पड़ता है। तो बहरहाल ये दावा करना कि तरावी का लफ्ज सादिक नहीं आएगा, ये बेकार की बात है, और अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना कि सामने वाला मान रहा है, सब कुछ तस्लीम कर रहा है, ये आपकी खुशफहमी है, कोई तस्लीम नहीं कर रहा है। ये आपका दावा या आपका इस्तेलाल, ये कोई तस्लीम नहीं कर रहा है। पूरी सराहत के साथ हम कह चुके हैं कि ये लफ्ज न कुरान में, न हदीस में है, न सहाबा किराम के आसार में। बाद के लोगों ने इस नमाज को ये नाम दिया है, और बाद लोगों ने ये भी कहा है कि अगर इसमें तरविया नहीं होता तो भी सलात तरावी करेंगे। 11 रकात भी जो है तरावी कहा है। और कितने सारे अखबार, आप हमारी किताब पढ़े, जिन जिन अइम्मा ने 11 रकात को इख्तियार किया है, इख्तियार करने के बावजूद भी उसको तरावी का नाम दिया है। तो जब अइम्मा ने इसमें भी तरावी का इतलाक किया है, तो आप कौन होते 1400 साल के बाद कहने वाले कि नहीं उसको तरावी नहीं कहेंगे। और अगर नहीं कहे तो कहते रहे, अगर आपको टाइटल छीनना है तो छीनते रहे। हम तो कहते हैं क्या में रमजान है, आप तरावी ना भी बोले तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। बहरहाल जो असल नस है कुरान, असल नस हदीस, साहबे कराम का असर जो असल दलील है, उसमें 11 रकात साबित है। ये नाम से कोई मसला साबित नहीं होता, असल जो चीज है वो मौजूद है वहां पे। जिसने भी हदीस की किताबें पढ़ी उनको पता है कि तरवीह का लफ्ज इसलिए लिखा हुआ है इसमें, हदीस की किताब में लिखा हुआ तरावी, हदीस की किताब में लिखा हुआ तरावी है। तो हदीस की किताब में अभी मैंने बताया ना कि सही बुखारी हदीस की किताब है। कुरान के बाद सबसे बड़ी हदीस की किताब कौन सी है, सही बुखारी। सही बुखारी में 11 रकत पे तरावी का लफ्ज लिखा हुआ है। सही बुखारी में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने 11 रकत पे तरावी का लफ्ज लिखा हुआ है। जाके खोल के देखे सही बुखारी। और अगर सही बुखारी समझ में नहीं आ रही है तो आप मुअत्ता इमाम मोहम्मद खोल लें। मुअत्ता इमाम मोहम्मद में जहां क़याम रमजान का चैप्टर है, नीचे अल्लामा लखनवी ने क्या लिखा, वो सम्मत तरावी, इसका नाम, इस क़याम रमजान का नाम क्या है, तरावी। उसमें रकत कितनी है, 11। उसमें रकत कितनी है, 11। ये अल्लामा लखनवी उसको तरावी बोल रहे हैं। फ़क़ाहत में और अरबी जुबान को समझने में आप अल्लामा लखनवी से भी बढ़ गए। वो तो कह रहे हैं वो तरावी है, 11 रकत को तरावी का नाम दिया उन्होंने। आप कौन होते कि नहीं इसको तरावी नहीं बोलेंगे। तो बहरहाल अइम्मा
اور محدثین جس طرح سے 11 رکعت سے زائد جو لوگ پڑھتے ہیں اس کو تراویح کا نام دیتے ہیں، ایسے ہی ائمہ محدثین فقہاء نے 11 رکعت جو قیام اللیل پڑھی جاتی ہے اس کو بھی تراویح کا نام دیا ہے. اس لیے آپ اس لفظ سے اس پہ کوئی استدلال